Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I'm going to talk about principle and of DC generator, and just I'm touching the armature winding. What are the types of armature winding? What is the function of the armature winding, like that. Already in the earlier lecture, I had discussed the construction of DC machine, maybe a motor or maybe a generator. Construction will be same. Okay. Now, what is the principle of generator? We know whenever we rotate the conductor in a magnetic field, so what will happen? That conductor will cut the flux, and when the flux will be cut down, changing amount of flux will link with the coil. And according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF will be induced in a conductor E equal to what? E equal to what? N d phi by dt. N are the number of turns, maybe 10, maybe 1, maybe 100, whatever they are. Clear? And phi is changing. When you change the flux, when you rotate the coil, that flux will be cut down and changing amount of flux. Because यहाँ से जो flux जा रहा है from north pole to south pole constant है. क्लियर ना? और जब कॉइल चेंज होगी तो क्या होगा? व्हेन इट इज रोटेटिंग ऑन द एक्सिस, तो जैसे ही चेंज होगा फ्लक्स कटिंग विल बी डिफरेंट. फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, राइट? एंड यहाँ नेगेटिव साइन है. अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, व्हाटएवर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इट अपोजेस द कॉज. जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करने वाला है. दैट इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ. सो and the direction of EMF induced, whatever the direction you will get, that direction will be given by Fleming's right hand rule. In case of generator, it is Fleming's right hand rule is applicable. So you know Fleming's right hand rule we have discussed in lecture number 1. Clear? So that is the basic concept we have. Now whatever the EMF induced in a DC generator, इट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर. याद रखना, कभी भी जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, दैट इज द अल्टरनेटिंग इन नेचर, राइट? सो इन फिगर you can say this figure we have a coil A, B, C, D. This is the coil we have having n turns are there. Let us assume n turns are there. Clear? And दो end निकले रहेंगे बाहर. Clear? And we are rotating this coil with the omega radian per second. Omega radian per second in clockwise direction. You can rotate in clockwise direction, you can rotate in anti-clockwise direction. It depends on you. So let us assume I am rotating this coil with omega radian per second in clockwise direction. So that whenever this coil will rotate, it will cut the flux or EMF will be induced. And the direction of EMF will be given by Fleming's right hand rule. Okay? So you will get now. So here that end you can take one slip rings. Clear? और slip rings will also be rotating. अगर ये एक्सिस पे रोटेट होगा तो slip ring will also be rotate, and rotate होने के बाद you can connect the brushes here, right? And brushes, so you will get जो EMF induce मिलेगा that will also be alternating. ऐसा नेचर का EMF मिलेगा. So this is the alternator or generator, AC generator you can say. Clear ना? Now we don't want AC, we want DC. So इसको DC को मतलब आपको ये नहीं चाहिए. I don't want this. I don't want this. I don't want DC volt, AC voltage. तो क्या करेंगे? We will remove these two slip rings connected here by one split ring. एक ring लेंगे हम. अभी यहाँ पर क्या कर सकते थे हम? पहले AC जनरेटर में क्या होता था? दो स्लिप रिंग्स हैं लाइक दैट. यहाँ आपका ब्रशेस है, इट इज कनेक्टेड हियर, और दिस इज कनेक्टेड हियर, और यहाँ एक ब्रशेस है, और यहाँ आप चाहो तो लोड लगा दो लाइक दिस. यू कैन कनेक्ट द लोड लैम्प बैंक. तो क्या होगा? यहाँ से करंट जाएगा, यू विल गेट अल्टरनेटिंग इन नेचर. सो अगर आपको डीसी चाहिए तो क्या करेंगे? वी विल रिमूव दिस पार्ट. टेक ओनली वन रिंग, डोंट टेक टू रिंग्स.
only one ring, and split that one ring into two halves, clear, and insulate these two rings, these two halves by mica sheet. So it is called as commutator. Okay, so in place of that I am going to use one commutator. So ये यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग one ring only, split this ring into two halves like that, and these two halves are insulated by mica sheet. This is connected to this part, this is connected to here, clear, and you can connect the brushes here. So these two halves are called as commutator, and it will convert AC to DC. So I'm going to explain this part in the next slide. Just see the next slide here. What is the function of the commutator, right? So I'm first okay. So I'm going to explain this part in the next slide. Now what is happening actually? This is the coil A, B, C, D having n turns or whatever. I'm taking one ring here, clear, and this ring is split into two halves, and these two halves are insulated by mica sheet. So this is the black part वाला दिख रहा है आपको, ये mica sheet है, insulated. This is the A and B, two segments are there. It is called as commutator. Okay. Now here you can say this is the brushes M and L. It is a brushes, and brushes के through external load connected है. Okay, you can say it is a lamp bank or terminal box or whatever there. Clear ना? So कौन सा induce हो रहा था? AC. You can say here it was inducing AC is inducing 0 to pi one direction and pi to 2 pi another direction, right? Now, so you can say I'm going to discuss 0 to pi only. 0 to pi आपको कैसा मिल रहा है? डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस कैसा है? AC 0 to pi, right? Now that is input. करंट कैसा फ्लो हो रहा है? A to B. A segment is connected with the brush number M. Current is going in this way, in this direction, M to L, and L is connected with the negative supply, and current is going in this way, right? So output कैसा मिलेगा? Output from brushes or output from commutator you will get like this. 0 to pi you will get like this only. Sorry, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, but it is like that. 0 to pi you will get like that. Now pi से 2 pi what will happen? Pi से 2 pi क्या है? आपका AC डायरेक्शन ऐसा था. That is input for the commutator. डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है. डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा चेंज हो रहा है? ये जो इट इज करंट कैसा था? C to D था ना, तो जो 180 डिग्री पे पोजीशन विल चेंज. ए बी यहाँ था, अब यहाँ क्या जाएगा? DC, और ए और बी यहाँ जो था वो यहाँ आ जाएगा AB. डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, चेंज हो रहा है. पहले पॉजिटिव ये था, अब ये हो गया नेगेटिव. तो डायरेक्शन चेंज हमारा पहले कैसा था? C to D था, अब D to C हो जाएगा लाइक दैट. और पहले A to B था, अब B to A हो जाएगा लाइक दैट. करंट ऐसा हो जाएगा. नाउ यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट A था और यहाँ पर B था. They will also change the interchange the position. Why? देखो आपका ये कहाँ प्लेस्ड है? एक प्लेस्ड है शाफ्ट के ऊपर. पहले ये पोजीशन A B था. थोड़ी देर के बाद शाफ्ट विल चेंज द पोजीशन. A will come here, B will come here. थोड़ी देर के बाद 90 डिग्री पे A will come here, B will come here. 180 डिग्री पे क्या होगा? जो B था वो यहाँ आ जाएगा और जो A था इधर वो यहाँ आ जाएगा at 180 डिग्री. 0 degree, 45 degree, 90 degree. So whenever the shaft will change, because we are rotating the shaft with the help of some prime mover, right ना? तो shaft की position change होगी तो ये shaft के ऊपर placed है. You have seen in the earlier slide and earlier presentation. So that will these commutator segment will also change their position. So right ना? So अभी आप देखेंगे 180 degree पे
180 डिग्री पे बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, राइट, इंटरचेंज हो गई पोजीशन। अगेन करंट कैसा फ्लो हो रहा है 180 डिग्री पे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया ना, ओके। सो पहले क्या था, C to D था, अब D to C होगा ऐसा। अगेन ब्रश, दिस सेगमेंट पॉजिटिव सप्लाई विल बी कनेक्टेड विद द सेगमेंट B, अगेन ब्रश नंबर M with connected with the positive supply again, and brush number L will be connected with the negative supply like this. Current will again flow in this direction. So कैसे आएगा आउटपुट, कैसे आएगा ऐसा, 2 pi, then 3 pi, then 4 pi, ऐसे ही आएगा आपका आउटपुट लाइक दैट। इसका मतलब है दिस कम्यूटेटर क्या कर रहा है, आपको अल्टरनेटिव को काय में कन्वर्ट कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल डीसी में, यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर, इट इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। इज इट क्लियर दैट कंसेप्ट, क्लियर ना? सो आई हैव टेकन टू पोजीशन, 0 से 1 पाई 180 डिग्री और पाई से 2 पाई 180 से 360 डिग्री, राइट। सो पहले क्या इंड्यूस हो रहा था, अल्टरनेटिंग इन नेचर, ऑलवेज व्हेनेवर Faraday's law of electromagnetic induction is there, whatever the EMF will induce, that will be alternating in nature. हमने कम्यूटेटर लगाया, ये पोजीशन A है और ये B, ये कब है 0 डिग्री पे। 45 डिग्री पे जब शिफ्ट कॉइल मूव हो जाएगी, 45 पे कॉइल कब मूव होगी, जब आपका शाफ्ट मूव होगा। शाफ्ट मूव होगा तो ये A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, राइट। सो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, B will come here, A will come here, 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। सो 180 डिग्री पे B और A यहाँ इंटरचेंज हो जाएंगे, क्लियर। और कॉइल विल आल्सो भी चेंज द पोजीशन, A और B यहाँ था, यहाँ क्या आ जाएगा D और C लाइक दैट, और A और B यहाँ था, वो यहाँ आ जाएगा A और B हियर। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, देखो 180 डिग्री पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट A to B था, अब B to A हो जाएगा, B to A, और C to D था तो यहाँ हो जाएगा D to C। अगेन brush M will be connected with the positive supply, L will be connected with the current, direction of current will be same, right? So you will get unidirectional voltage. In this way it will convert AC to DC in case of generator. मोटर में उल्टा होगा, it will convert DC to, it will invert actually, it will convert DC to AC. So is it clear? That is the principle of generator. I have shown how the commutator works. Clear? It is also rotating, but brushes क्या है, ये fix है. So this is the principle of generator. I am stopping here only. I am just going to discuss what is the armature winding, function of the armature winding in this presentation only, right? Okay, next slide. Armature winding. What is the function of the armature winding? The armature winding कहाँ प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड इन द आर्मेचर कोर। नाउ आर्मेचर कोर कैसा रहता है, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। इट इज लाइक ए बेलन, चपाती बनाने का बेलन, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये आपका शाफ्ट है, क्लियर, ओके। और इसके ऊपर क्या है, स्लॉट्स लाइक दिस, ओके। और यहां पर आपकी कॉइल रहेगी, यहां से कॉइल जाएगी, दिस द एंड कनेक्शन, दिस इज द कॉइल। और यहां आपका क्या फिक्स्ड है, कम्यूटेटर लाइक दैट। दिस कॉइल विल बी कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर लाइक दैट। और इसके ऊपर क्या है, ब्रशेस इज फिक्स्ड, इट इज स्टेशनरी पार्ट, राइट। और यहाँ आपका ये एंड कहाँ जा रहा है, टर्मिनल बॉक्स पे या लैंप पे या जो भी लोड है, इट इज लाइक दैट, क्लियर। और तो दिस इज जस्ट लाइक ए बेलन। और यहाँ आपका क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ही होगा साउथ होगा, वट एवर देयर, राइट। सो ये परमानेंट मैग्नेट है कि नहीं है, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। सो इसके ऊपर कॉइल को, इसके ऊपर कॉइल प्लेस्ड है, क्लियर। तो कॉइल का काम क्या, कौन सी कॉइल है, इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, फील्ड कॉइल। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द फ्लक्स, एंड व्हेन द फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट फ्लक्स इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइक दैट, राइट।
So यहाँ से यहाँ तक, right? This is called as magnetic field. This is called as magnetic field. And whenever we are rotating this shaft with the help of some, यहाँ पर coupled क्या है? Prime mover. Maybe motor, maybe turbine, maybe engine, whatever there. So when we rotate it, when we give the mechanical energy in the form of rotation, so this coil will cut the flux. और फ्लक्स कटेगा तो क्या होगा? पोजीशन कॉइल की चेंज होती जाएगी, एंड सो मेनी कॉइल्स आर देयर हियर. सो ऑल विल कॉइल विल इंड्यूस एन ईएमएफ. क्लियर? और ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग इन नेचर, एंड विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर वी विल कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड इट विल बी गिवन टू लैम्पिंग. सो दिस इज द वे. So what is the function of the armature winding? कहाँ placed है this here? क्या function है? Armature winding is placed on the armature core. This is the armature core. Clear? It will cut the flux. Field flux को cut करेगा. Flux कटेगा तो क्या होगा? Armature winding and induce an EMF. So function of armature winding to induce an EMF by cutting the working flux. And in order to utilize the armature periphery, इस आर्मेचर पेरिफेरी को यूटिलाइज करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग एक है कि नंबर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आर देयर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो मेनी आर्मेचर वाइंडिंग आर प्लेस्ड हियर. क्लियर? एक नहीं है. ओके, सो दिस आर्मेचर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग, इट इज नॉट ए कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग यू कैन सी. These two differ in the manner in which the coil ends are connected to the commutator segments. दो टाइप की कॉइल हैं. कैसे डिफर हैं? वन इज कॉल्ड एज लैप वाइंडिंग एंड अदर इज कॉल्ड एज वेव वाइंडिंग. वन इज कॉल्ड एज लैप कनेक्टेड आर्मेचर एंड अदर इज कॉल्ड एज वेव कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग. लैप और वेव में डिफरेंस क्या है? लैप में क्या होता है? ये दो एंड है, दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है, ये एंड कनेक्शन है, दिस इज द एंड कनेक्शन, और इसके दो एंड कहाँ कनेक्टेड है? कम्यूटेटर सेगमेंट पे. दिस टू एंड्स आर कनेक्टेड टू नियर बाई कम्यूटेटर सेगमेंट. नियर बाई कम्यूटेटर सेगमेंट, इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग. The two ends of the coil are connected to two nearby commutator segments called as lap winding. So this is the lap winding. A figure, right? और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग. वेव वाइंडिंग में क्या होता है? these two ends यहाँ तक आए और they will bend in opposite direction. Clear? Opposite direction, and these two ends of a coil connected to opposite direction and they will be connected to 360 electrical degree. I want to tell you one thing. Electrical degree and mechanical degree are different. Okay? So it is 360 electrical degree. आप 360 degree बोलेंगे तो एक ही point पे आ गया. नहीं, they are connected to 360 electrical degree. I will discuss this point in the next in this presentation only, this slide only. Clear? So these two ends are connected, bent in opposite direction here, and these two ends are connected to 360 electrical degree. This is called as wave winding. Okay, now again I will discuss what is a lap winding, what is the use of lap winding, what is the use of wave winding. We'll discuss, but I want to discuss first what is electrical degree and mechanical degree. I want to discuss this part. Okay, so just I'm rubbing it first. Now I'm going to use another sheet here. Now see here, theta electrical क्या होता है and theta mechanical क्या होता है. Just you know theta mechanical 90 degree, 10 degree, 20 degree, you know. Clear? Theta electrical we have one formula. Theta electrical equal to formula है P by 2 number of poles upon 2 into theta mechanical. This is the formula we have. Suppose I have north pole here and south pole here. I have a two-pole machine. This is the two-pole machine, maybe generator, motor or induction motor or whatever there. So ये distance कितना है? Mechanically ये 180 डिग्री है ना. This is angle कितना है? 180 डिग्री है ना. So theta mechanical कितना है? 180 डिग्री. Okay. Theta electrical क्या होगा? Theta electrical P by 2. P कितना है? 2 upon 2 into 180.
थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है 180 डिग्री. थीटा इलेक्ट्रिकल विल आल्सो बी 180 डिग्री, राइट. सेकेंड केस मैं ले रहा हूं, ये नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल, this is the north pole, this is the south pole. I have a 4-pole machine, north south north south. I have a 4-pole machine. This is 4-pole machine, maybe generator or motor, whatever there. What is this distance between north and south? Nearby pole का distance कितना है? 180 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है? Yes, it is 90 डिग्री mechanically, right ना. इलेक्ट्रिकली क्या होगा? थीटा इलेक्ट्रिकल P by 2, P कितने 4, 1 2 3 4, 4 by 2 इंटू थीटा मैकेनिकल कितना है 90, कितना आ रहा है 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री. अगेन 180 आ गया इधर, इलेक्ट्रिकली 180 हो गया. मैं एक काम करता हूँ, 8 पोल मशीन लेता हूँ, नॉर्थ, ये हो गई आपकी 4 पोल मशीन, एक और यहाँ है, एट पोल हो गया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ. याद रखना कभी भी एक नॉर्थ है तो उसके नियर बाई जो पोल रहेगा वो साउथ रहेगा, लाइक दिस. ओके, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, लाइक दैट. ओके, सो दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई पोल, इसको बोलते पोल पिच, दैट इज कॉल्ड एज पोल पिच. ये भी पोल पिच है. पोल पिच क्या कहता है? पोल पिच, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई पोल, पोल पिच क्या है. अभी यहाँ थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होगा? थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होगा? P बाई 2. P कितने हैं? फार्मूला है P बाई 2. P कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई 2 इंटू ये कितना है डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई पोल? 45 डिग्री है, पोल 45, सो 45 तो कितना आएगा 180 डिग्री. I have taken 3 cases, यहाँ ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों केस में डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई पोल कितना है? मैकेनिकली कुछ भी है बट इलेक्ट्रिकली कितना? 180 डिग्री. यहाँ आया 180 डिग्री, यहाँ आया 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, सॉरी यहाँ 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री 180. इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई पोल कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई pole called as pole pitch. पोल पिच मैकेनिकली कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली कितना होगा? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री. ऑलवेज पोल पिच विल ऑलवेज भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री. क्लियर? अभी पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि जो two ends of coil which bent in opposite direction and it is connected to 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री. 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री मतलब टू पोल पिच के डिस्टेंस पे वो कनेक्ट हो जाते हैं. क्लियर? इन केस ऑफ वेव. और लैप बाइंडिंग में कहाँ कनेक्ट होते हैं? टू नियर बाई कम्यूटेटर सेगमेंट. सो इज इट क्लियर व्हाट इज ए थीटा इलेक्ट्रिकल? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इन फ्यूचर आल्सो विल बी यूज्ड. थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P by 2 into थीटा मैकेनिकल, राइट. सो आई एम गोइंग बैक here. okay, that is कितना डिस्टेंस है? ये 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री, दो पोल पिच के बराबर है, टू पोल पिच के बराबर, राइट. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ वेव बाइंडिंग एंड लैप बाइंडिंग. लैप बाइंडिंग, क्लियर? लैप बाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं? पहले ही बात बता देता हूं मैं. लैप बाइंडिंग कहाँ है? टू एंड्स ऑफ द कॉइल कनेक्टेड टू टू नियर बाई कम्यूटेटर सेगमेंट. आप देखो ये कॉइल है, ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं मैं ये. क्लियर ना? ये कॉइल ऐसी नहीं है. कॉइल कहां पर है? कोर के ऊपर है. और एंड कहां कनेक्टेड? टू नियर बाई कम्यूटेटर सेगमेंट. देखो ये 1, ये 2, एक एंड यहाँ है और दूसरा यहाँ है. दूसरी कॉइल ये है, दूसरा एक एंड यहीं कनेक्ट रहेगा 2 पे और तीसरे थर्ड पे 1 कॉइल और अगेन दूसरा एंड यहीं रहेगा और उसके तो ये इससे सीरीज में कनेक्ट होते आएंगे लाइक दैट, राइट ना. सो दिस इज आर्मेचर कॉइल. कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट. आपको जब भी ज्यादा करंट हो, राइट, फॉर हाई करंट मशीन, लो वोल्टेज एंड it is used for low voltage and
लो वोल्टेज एंड हाई करंट, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। लो वोल्टेज एंड हाई करंट का मतलब क्या है? हाई करंट को अगर आपको याद रखना है, इसमें नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको ये क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ए इक्वल टू पी। यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2, ऑलवेज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज ए इक्वल टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? ए इक्वल टू पी। अभी आपका अगर ज्यादा करंट है, पी नंबर ऑफ पोल सपोज 8 हैं, सो पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सपोज करो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हैं, तो पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? ए इक्वल टू 4। आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल। ये कौन सी वाइंडिंग है? लैप है कि वेव? जस्ट सी हियर, it is a lap winding. Why? It is two ends of coil connected to nearby commutator segment. It is a lap winding. कितने पोल हैं? सपोज करो 4 पोल हैं, सो पैरेलल पाथ कितने होंगे? 4। देखो यहां से 600 एम्पियर करंट आ रहा है। अगर ये मोटर है तो इट विल टेक द करंट, अगर जनरेटर होता तो इट विल गिव द करंट। सो आई एम अज्यूमिंग इट इज ए मोटर, सो इट विल टेक 600 एम्पियर करंट, एंड आई कैन से दिस इज 600 एम्पियर इज वेरी लार्ज करंट। सो कौन सी वाइंडिंग होनी चाहिए? लैप वाइंडिंग होनी चाहिए, राइट? सो 600 में से यहाँ कितना जाएगा? 300, और यहाँ कितना जाएगा? 300। देखो यहाँ से दो पाथ आएगा, 300, ये 300 यहाँ जा रहा है। सो ये दोनों करंट यहाँ आ रहे हैं 300 और यहाँ से 300, यहाँ से वापस जाएगा 300 और यहाँ से वापस जाएगा 300। तो जितना आया था उतना वापस जाएगा 600, राइट? नाउ यहाँ से 300 आने के बाद ये जो करंट आ रहा है ना, यहाँ ब्रशेस, यहाँ से 150 यहाँ जाएगा एंड 150 यहाँ जाएगा, 150 यहाँ जाएगा, 300 यहाँ से भी आ रहा है, 150 यहाँ जाएगा। So current is divided into 150, 150, 150, 150. Each path will carry 150 ampere. Clear? And 150 यहाँ से, 150 यहाँ से, यहाँ से 300, 150 यहाँ से, 150 ampere यहाँ से 300, like that. So in this way you can get 4 parallel path and each path will carry current of 150 ampere. राइट? सो अगर करंट कम हो गया तो क्या होगा? कंडक्टर साइज विल बी रिक्वायर्ड लेस, क्लियर ना? और कंडक्टर साइज कम होगी तो कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड, दैट इज द पर्पस। अगर इसके बदले में हमने वेव बाइंडिंग यूज की होती, हाउ मेनी पैरेलल पाथ वी हैव? ओनली 2। सो 2 में क्या होता? 150 एम्पियर यहां से आता, एक दो ही ब्रश रहते, एक और एक, दो, 150 यहाँ, 300 यहां से आता और 300 यहां से, यहां से कितना आता? 600, 300 यहां से और 300 यहां से। ईच कंडक्टर विल कैरी ओनली 600 एम्पियर करंट, सो कंडक्टर साइज शुड बी हाई। सो याद रखना, कभी भी जब भी ज्यादा करंट है वी विल यूज लैप वाइंडिंग। एंड वेव वाइंडिंग में क्या होगा? वेव वाइंडिंग में अगर करंट कम है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट है, तो कौन सी मशीन यूज करेंगे? ओनली वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? ओनली 2, क्लियर? सो पर पाथ, सो इट विल लाइक दैट। सो याद रखना, जब भी हाई करंट है, और क्लियर, हाई करंट में क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी डिवाइडेड, ए इक्वल टू व्हाट? पी। सो इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग हाउ मेनी ब्रशेस आर देयर? कितने पोल हैं? 4 पोल हैं, 4 ब्रशेस। 2 पोल हैं, 2 ब्रशेस। No, it is not like that. In case of wave winding, parallel path only 2 हैं. So number of brushes will not depends on the number of poles. It will depends on what? It depends on the number of parallel path. कितने हैं? 2 brushes will be 2. 1 and this is 2. Clear? In case of lap winding, number of parallel path is equal to what? Number of pole. So number of parallel path उतने ही brushes रहेंगे। मान लो 8 पोल हैं तो 8 पैरेलल पाथ होंगे, 8 ब्रशेस रहेंगे। 4 पोल हैं, 4 पैरेलल पाथ होंगे, 4 ब्रशेस रहेंगे, लाइक दैट।
Clear? So be careful about, in case of lap winding, number of brushes will be equal to number of parallel path equal to number of poles. In case of wave winding, it is number of parallel path कितने हैं, number of brushes कितने, उससे कोई number of poles कितने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. हमको मतलब है only number of parallel path कितने होते हैं, only 2, and number of brushes will be always 2. Okay, so this is the lap winding and wave winding, and this is the lap winding I have shown. So this is used only to clear your concept. Okay, I'm stopping here only. In the next presentation, I will discuss the EMF equation. Clear? And some numerical based on that we'll discuss. So I'm stopping here. Okay, thank you very much for listening me carefully.